नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, मैं दिल्ली से सीधा बिहार पहुंची हूं लाइव कवरेज करने के लिए। जिस तरह से पिछले 1.5 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन, उसी को कवर करने के लिए। और यहां पर तमाम लोग अपनी-अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं, कोई सरकार को ज्ञापन दे रहा है, कोई अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर एक टीम पहुंची है, तो इनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी कि कहाँ से आए हैं और इस आंदोलन में आने का उनका उद्देश्य क्या है। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम है डॉक्टर मनोज हुमने। डॉक्टर मनोज जी, यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? थोड़ा-सा इस पर प्रकाश डालें। See, our vision is quite clear. We want our temple, Mahabodhi temple, ought to be on the hand of Buddhist. It is How? it is clear that because there is no other place for us to go and worship there, because they are not allowed to come there. Then why we should go there, and why we should pay our unnecessary waste our time, money, energy, and at last what we will get? Only blind believings, nothing else. Buddha is a temple. Doctrine of Buddha is that philosophy of a mankind, of a human being, for the human being, only for the human being, not for others. Lord Buddha never advocate for the God. He never praise God. Whenever somebody asks the question to Buddha, where is God? Buddha is keep quiet and keep silence. Why? He knows that man has to perform their own duty for their survival, for their existence, for the coming generations, for the betterment of the society, for the betterment of the mankind. And it is scientifically proved beyond the reasonable doubt. Yeah. In this religion, Buddha never praise anybody. He said that you go and see inside yourself, work hard for yourself, work hard for the society, work hard for the public, work hard for the human being, for the mankind. And it is the message of the Buddha, only message. That's why the Buddha, the religion, the Buddha's philosophy, the doctrine never dies. And you see that the day by days, the Buddhism is going to accept by the abroad also, in particularly European countries, and that because if we feel that, अगर हम ये सोचते हैं, if we feel that कि हमारा देश डेवलपिंग है, आजाद हुआ, डेवलपिंग है और आज भी डेवलपिंग है, इफ साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या देते हैं दूसरे देश को? हम लोग बेचते गेहूं, चावल, जो हमारी उपज है, जो हमारी धरती हमको देती है, उसमें अभी हम लोग को कोई टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा कुछ है बचा नहीं है। हम लोग ये बेचते हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी टेक्नोलॉजी, जो बाहर से जो टेक्नोलॉजी आती है उसको हम लोग डेवलप करते हैं, उनके पेटेंट्स हम लोग यूज करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है, और हम उसको वापस बेच देते हैं, दे देते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट है, इट इज नॉट अ रियल डेवलपमेंट। रियल डेवलपमेंट इज दैट कि वी हैव टू सेल द टेक्नोलॉजी, we have to sell the technology to the others, then and then only our country will be developed country, we can say it. First. Second important issue is that at the time of Lord Buddha, we have a Magadha University, and technology is flowing from east to west. Now what happens? Technology is flowing from west to east. Where India goes, it is declined slowly. सर, इंडिया तो मंदिरों में घुस गया है ना, अगर वर्तमान की आज बात करें तो हम। I am coming to that point. Because the intellectual peoples, they are not intellectual. They have only the degree holders. Their mind is just polluted in slavery. और उनका दिमाग सिर्फ इसी में लगा हुआ कि हिंदू करो, मस्जिद करो, ये करो, इनको डिवाइड रखो तो हम रूल करेंगे। लेकिन वो इंसान के भलाई के काम कम सोचते। अगर नेता लोगों का भी, वो लोग का भी अपनी रोजी रोटी है, अगर वो मुद्दे जिंदा नहीं रखेंगे तो वो दे विल
themselves die out. लेकिन सर मुद्दे तो जन कल्याण के लिए होने चाहिए ना, पर्सनल व्यक्तित्व के लिए नहीं होने चाहिए ना। तो बुद्धा, सी डॉक्टर, देयर इज अ फिलोसोफर्स, सब बहुत इंडियन लोगों के पास, बहुत लोगों के पास डिग्रियां है। देयर इज लॉट ऑफ फिलोसोफर्स आर देयर। बुद्धा के बारे में जानते सभी हैं, मोदी जी भी जानते हैं, जब विदेश में जाते हो बड़े गर्व से कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर वो युद्ध कर रहे हैं। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि पढ़े लिखे बहुत है, डिग्रियां सबके पास है, दे नोज द फिलोसॉफी ऑफ बुद्धा, इट विल राइज डे बाय डे बिकॉज इट इज फॉर द मैनकाइंड। लेकिन यहाँ के जो बुद्धिजीवी जो है, फिलोसोफर्स जो है, दे आर डिस्ट्रक्टिव फिलोसोफर्स। देयर इज a few philosophers, I am specifically said that, like Dr. Ambedkar, he is a philosopher for the mankind. ऐसे फिलोसोफर नहीं है, ऐसे फिलोसोफर नहीं है। फिलोसोफर वो है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भटकाया जाए, दे पुट द पीपल, यंग जनरेशन इन द रॉन्ग चैनल। दैट्स व्हाई बुद्धिज्म इज lagging behind, but doctrine of philosophy is very rooted to the humankind, so it will never die. जी सर, आपका नाम क्या है? मैं नमो बुद्ध पहले नमो बुद्धाय सर। धन्यवाद। मैं जमशेदपुर बौद्धिस्ट सोसाइटी असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ और ये शहर हम लोग का प्रेसिडेंट है। मेरा नाम है साधन बरुआ। मेरे ये सर, इस आंदोलन को देखते हुए क्या लग रहा है कि कितना सफलता की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि किसी भी आंदोलन की हम बात करें तो उसमें एक जनबल की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, कोई भी चीज़ तो बैठे और तुरंत मिल जाए वो तो नहीं, जो चीज़ देरी से मिलेगा वही स्ट्रांग रहता है। सर 95 से आंदोलन चल रहा है। वो चलेगा लेकिन वो दूर नहीं है, ये रिजल्ट आएगा। ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध की धरती मानना पड़ेगा ही। ये हम लोग का एक तो ये है अधिकार है जो 1949 को निरस्त करे और बुद्धिस्ट को हाथ में सौंपे बस। सर आपने कहा कि बुद्ध की धरती है, ये तो मानना पड़ेगा। मानते तो सभी हैं, क्योंकि मोदी जी विदेश में जाते हैं तब कहते हैं, अन्य वित्त मंत्री जाते हैं वो कहते हैं, या बड़े बड़े पूंजीपति घरानों से जब लोग विदेश में जाते हैं तो यही कहते हैं कि बुद्ध की धरती भारत से आए। लेकिन बुद्ध की धरती भारत में वो कर क्या रहे हैं? हाँ, यही सवाल एक तो है। इसका सवाल का जवाब मुझे देने दीजिए। सर यू कैन स्पीक हिंदी प्लीज। हाँ, मैं ना हिंदी में बोलता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जितने भी, वो बाहर में जाके बुद्धा की मूर्ति देते हैं, वो ये दर्शाते हैं कि हमारा देश इंटेलेक्चुअल धर्म है, इंटेलेक्चुअल हमारा कंट्री जो इंटेलेक्चुअल है, जो हर चीज को इंटेलेक्चुअली समझ के कर सकता है, शांति से इंटेलेक्चुअल तरीके से कर सकता है, ये वो दिखाते हैं बाहर में, लेकिन यहाँ अस्तित्व में नहीं करते। यही फर्क है। जी चलिए ठीक है, इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ महिला साथी भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैम नाम क्या है? मेरा प्रज्ञा हुमने। प्लीज कम है जी। हाँ जी, मैं प्रज्ञा हुमने हूँ। कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर से हमारी पूरी टीम आई है। हमने वहाँ पर भी हमारे डीसी को लेटर दिया था, राष्ट्रपति के नाम पर हमने लेटर दिया, राज्यपाल के नाम पर दिया, और हमने शांतिपूर्ण आंदोलन भी वहाँ पर किया है। शांति पीस मार्च किया है संडे के दिन, अभी 23 को हमने किया। और उसी समय हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग सब वहाँ से यहाँ पर आके इस आंदोलन को समर्थन देंगे, आर्थिक सहायता देंगे, प्लस कुछ फूड हम लोगों ने डोनेट किया है, अनाज हम लोगों ने अन्न का दान किया है यहाँ पर। और हम लोग जैसे कि भंते जी, लामा भंते जी बोले थे कि आप लोगों को तन मन और धन से इस आंदोलन में सहभागी होना है, तो धन से सहभागी होने के लिए आज हम पूरा दिन भर यहाँ धरना बैठन करेंगे। और धन तो मैंने आपको बता दिया, तन मन धन तीनों उपस्थित है। और मन अभी हम लोग यहाँ से जाके और हमारे इस आंदोलन को और लोगों में स्प्रेड करेंगे और लोगों को और जागरूक करेंगे कि आप लोग यहाँ पर आइए और इस धरने में, इस नोबल कॉज में आप सब लोग साथ दीजिए। जी बहुत बहुत साधुवाद। मैम किसी भी आंदोलन की मजबूती के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी की हम देखते हैं कि महिलाएं होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि महिलाओं की संख्या अभी तक इस आंदोलन में बहुत कम नजर आ रही है। तो महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा कि इस आंदोलन में आकर इसको से निकालो? घर से नहीं निकलने से कुछ नहीं होगा, घर से आ जाओ, सब हो जाएगा। घर से निकालेगा कौन? सवाल तो वही खड़ा होता है ना। ये तो मुश्किल बात है। भंते जी निकालेगा, समाज निकालेगा, आप हम निकालने से निकलेगा।
बस देखिए इतना यही एजेड है। आंटी यहाँ पर आई है तो उनसे चलने में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी इस नोबल कॉज के लिए आई है। तो ऐसे ही लोग यहाँ पर आए हैं, आपके चैनल के द्वारा लोगों को पता चलेगा कि इतनी वृद्ध महिला यहाँ पर आकर आंदोलन में हिस्सा ले रही है, तो ऐसे ही तो घर से लोग निकलेंगे। जी जी बिल्कुल। सर आपका नाम क्या है? अरूप बरुआ टीम के साथ में है, मैं जब तो इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं? इस आंदोलन को मैं बेसिकली ये चीज़ देख रहे हैं, मेरे अशोक लामा जी के जो आंदोलन जो आवाज़ जो शुरू की है, तो आंदोलन को हमने देखा आज 45 डेज करीब ये धरना में है। तो उनको देखने के बाद तो ये लगा कि इसमें नॉट ओनली खाली व्यक्तिगत वैसे नहीं है, हमारे टोटल भारतवर्ष बुद्ध जीवन के लिए बात है। जो हमारे मेन तीर्थ स्थान ही है, उसके लिए 1949 का जो एक्ट जो लगाया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम से आज की दुनिया में हमारा बुद्ध जीवन बहुत आगे बढ़ गया, संग आ गया। इस एक्ट को उठते हुए हमें एक अच्छा आज़ादी होना चाहिए और हमारे कमेटी में भी हमारे बुद्ध जीवन के बांधे चलो उनको भी माने पार्टिसिपेट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि अपना बुद्ध जीवन रूल से हो। ये विदेश से भी आते हैं, इसके एक छवि लेके वो लोग जाते हैं, वो छवि हमारे अच्छा रहे, यदि इसी से हमारे भारतवर्ष को ही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो भी बाहर ही जाते थे तो हमारे बुद्ध के बारे में भी बात करते हैं, परिचय होते हैं, सर, इससे हमारे जी, देश जी, के एक गौरव बढ़ते हैं। आज हम देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे बौद्ध भिक्खु हैं जो नकली चीवर पहनकर घूम रहे हैं। अगर जो बौद्ध विहार एक तरह से वापस भी आता है बुद्धों के पास में, तो सवाल फिर वही खड़ा होता है कि कौन से बौद्ध होंगे और कौन से वो बौद्ध भिक्खु होंगे जिनके पास ये जाए, क्योंकि आज आरएसएस ने बहुत सारे बौद्ध भिक्खु उतार रखे हैं। एग्जैक्टली आपने एकदम सही क्वेश्चन किया। हमारे बहुत से बुद्ध भिक्षु हैं जो कि अपना चीवर पहन के हैं, जो एक्चुअली वो बुद्ध भिक्षु है ही नहीं है। बुद्ध भिक्षु है बुद्ध की नीति अनुसार, जो हमारे बड़े मंगल उनके से ही अनुसार ही होना चाहिए। वो अपना परिवार पढ़ने के लिए जो कवर चन के भी हुआ, और उससे क्या हुआ, असली बुद्ध भिक्षु जो है वो मार खा जाते हैं। बाहर से डेलीगेट जो लोग आते हैं वो देखते हैं, जो चीवर को सम्मान करते हैं वो लोग देख रहे हैं बुद्ध भिक्षु है, बट तो एक्चुअली बुद्ध भिक्षु है ये नहीं, उनको ना बुद्ध के बारे में कुछ ज्ञान है। वो अपने परिवार के लिए चीवर पहने, अपना रोजे रोटी का। तो इसको एक अच्छा रहना होना चाहिए। अच्छा हमारे अगर इस टाइप के हमारे ऐड में आ जाएगा हमारे बुद्ध भिक्षु, तो हम लोग एक ID बनाएगा, तो उस ID के माध्यम से जो बुद्ध भिक्षु जो असली है ना उनका परिचय सर मिलेगा। पहचान कैसे करेंगे? उसका पहचान उस टाइम उनके जो भी बुद्ध भिक्षु अगर हमारे यहाँ पर बहुत से बैठते हैं तो उनके एक ID ऑटोमेटिक बनाने से ID से प्रूफ हो जाएगा। ID दिखाइए आप ओरिजिनल बुद्ध भिक्षु है। मैंने भी बहुत साल से हर साल हम लोग आते हैं, जीवन में बहुत से बुद्ध भिक्षु लोग वहाँ बैठते हैं, जो नीचे में बैठे हैं वो हम लोग का खराब लगते हैं, उनको उठा के हम लोग कहते हैं, फिर हम बोला रियली आप बुद्ध भिक्षु है तो आप इस स्थान में बैठिए, अगर रियली नहीं है तो इस टाइप का मत कीजिए, हमारे धर्म को बर्बाद मत कीजिए। तो सर आज जो भारत में बौद्ध भिक्षु संघ है, क्या लग रहा है वो इस दिशा में काम कर रहा है जिस तरह से काम होना चाहिए था? क्योंकि अगर 1956 के बाद की मैं बात करूं, बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर लाखों लोगों के साथ में बुद्धिज्म की दीक्षा ली थी और अपने अनुयायियों को भी दिलाई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके बाद जो उनकी पीढ़ियां थी वो कहीं ना कहीं हिंदूवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ी। और आज भी जो भारत में एक हम अगर रेशो देखें, क्योंकि लोग कहते हैं कि SC ST OBC हम 85% है, लेकिन ये 85% आज भी जाति में, धर्म में, तरह तरह की चीजों में बटा हुआ है। तो ये क्यों नहीं बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहा है? कारण कहाँ है और कमियां कहाँ देखते हैं आप लोग? मीन्स है कि हमारे बुद्ध जीवन के जो भी बुद्ध जीवन का हमको और स्टडी करते हुए इनको हम लोग को और डेवलप करना चाहिए, जो कि हमारे जो जिस धरती में हमारे बुद्ध जन्म लिया उनसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे विदेश में है। विदेश की धरती में अगर आप थाईलैंड ताइवान में गए हुए हैं, जो मैंने जो कंट्री में गया वहाँ के जो एक बुद्ध भिक्षु का जो सम्मान होता है, जो कल्चर है उनका जो परिचय, वो हमारे देश में नहीं है। जबकि बुद्ध भारत में जन्मे, जो यहाँ पे फले फूले। हमारे कुछ भांति जी लोगों को भी कुछ इसमें, और हमारे बुद्धिज्म के लिए भी बहुत सा जागृत नहीं, जो कि अभी सोरेट एक ही चीज से देखिए ना, धरना दिया भारतवर्ष का इतना है, यहाँ मुट्ठी भर आदमी पार्टिसिपेट किए। जो कि आपने बोला महिला एक बहुत शक्तिशाली होता है, हमारे कुछ महिला को अभी भी घर से नहीं निकाला, जैसे हमारे वो जो महिला ने उन्होंने इतना दूर से आया, जो कि उनका तबीयत खराब है, तो उनको देख के एक प्रेरणा होना चाहिए। अदर महिला को यहाँ पार्टिसिपेट होना चाहिए, एवरीडे आके आना चाहिए। कुछ आ रहे पार्टिसिपेट आके टूरिज्म के जो आ रहा है यहाँ, मैं भी दिल्ली से आया हूँ सर कवर करने। नहीं यहाँ पर आ रहे राजगीर वगैरह अदर में साइड में घूमने जा रहा, तो मेन उद्देश्य हम जिस पर्पस में आए हैं और जिस चीज को लेकर वो होना चाहिए। ये एक दिन का तो नहीं है, ये आवाज हमारे चलते रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरी टीम थी, उनके साथ में चर्चा की है और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कोई भी आंदोलन होता है उसकी मजबूती के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें मद्देनजर रखते हुए उस पर काम करना पड़ता है। सर कुछ कहना चाह रहे? जी सर। मैडम जैसे कि आपने अभी सर को पूछा एक सवाल कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC ये 85% है, फिर भी ये क्यों है? क्योंकि 19 जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बैठा है ना,
कॉन्स्टिट्यूशन बैठा, कॉन्स्टिट्यूशन बैठने के बाद उसके पहले डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। जी। बाबा साहब ने स्वीकार किया था, ये कारण तो सबको मालूम है, क्योंकि जिस टेम्पल में इज्जत ही नहीं है तो वहाँ क्यों जाए। जैसे हमारे वो जो हमारा उड़ीसा का टेम्पल जो है, वहाँ पर भी हमारे प्रेसिडेंट को जाने नहीं दिया। तो जब प्रेसिडेंट को जाने नहीं दिया, वो प्रेसिडेंट वापस आ गया, ये तो सबको मालूम है, सबने देखा है इसको। जब अयोध्या उस- में राम मंदिर बना, उसको उद्घाटन में नहीं जाने दिया, नींव रखी गई जब नहीं जाने दिया, बहुत सारी ऐसी बहुत चीजें सारी हैं। चीज थी। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी पोस्ट में रह के भी जब ये लोग जाने नहीं देते तो ये क्यों जाते हैं, अपना टाइम बर्बाद करते हैं। कुर्सी है ना सर उनके पास तो। नहीं, लेकिन जो आम जनता है, इन लोगों ने ये चीजों को समझना चाहिए कि भाई इस टेम्पल में तुम्हारी इज्जत ही नहीं है तो क्यों जाते। बाबा साहब तो वही चीज बोल रहे थे ना, कि जहाँ पे इज्जत नहीं है वहां मत जाओ भाई। इससे बेटर यू शुड गो टू IIT, बेटर यू शुड गो टू NIT, बेटर यू शुड गो टू एम्स, बेटर यू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेटर यू गो टू बॉम्बे वो यूनिवर्सिटी। तो सर ब्राह्मणों के बच्चे जा रहे हैं ना। तो हम लोगों को वहां न जाना चाहिए, इसके लिए इनको कहीं ना कहीं एंगेज करके रखो। एंगेज करके रखो मतलब वो लोगों को उनकी एनर्जी जो है ये सब भगवान वगैरह के चक्कर में लगा के रखो। अगर उनकी एनर्जी यहाँ लगी रहेगी तो सत्य जान नहीं पाएंगे, और एक बार बुद्ध के दरवाजे पे वो आ गए और सत्य जान गए तो वो आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम ज्यादा है। तो अब और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो जब से 26 जनवरी जब से हमारा संविधान लागू हो गया, खास करके आपने SC ST OBC का बोला है, तो ऐसे शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट वालों को भी देखा जाए तो किन किन लोगों के पेट एकदम भर चुके हैं। अभी मैं भी बहुत बड़े ऑफिस में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ जिन लोगों का पेट भर गया, जो बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच चुके हैं, अब वो लोगों को इस समाज से, उस धर्म से कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। लेकिन उन लोगों को ये पता है कि भाई अगर कहीं सर्विस का जॉब निकला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए तो देखना भीड़ बहुत ज्यादा लग जाएगी, लेकिन ये कामों के लिए वो कभी नहीं आएंगे। खास करके वेस्ट बंगाल देखो आप, बिहार देखो, हर जगह ये हाल है सर। हर जगह यही हाल है। साउथ इंडिया में देखो, मैं अपने इसमें भी बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो लोगों के दिमाग, बड़े बड़े ऑफिसर्स के दिमाग ऐसे पोल्यूटेड है, और ऐसे पोल्यूटेड है कि उनको सिर्फ फायदा चाहिए। फायदा हो गया, बाबा साहब ने मेहनत कर लिया, उनके उनके बच्चे मर गए, सब कुछ मर गया, लेकिन ये जो उनका जो उसका जो बच्चों का जो मेहनत का जो उनके जो ये जो है ना इल्जाम, ये लोगों की जिंदगी में आने वाला है। और इनके दिन अभी ठीक लग रहे हैं इन लोगों को, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा जब ये लोग आएंगे ना, नेक्स्ट जनरेशन में जब देखेंगे कि भाई मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने वाला, तब ये जागेंगे, जी उसके सिवा ये जाग नहीं सकते। जी जी, और बहुत 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 सर लेंथी हो जाएगी वीडियो बहुत, क्योंकि हमारे एक ही बात बोल रहा हूँ, एक ही पॉइंट, बहुत मुद्दे की बात बोल रहा हूँ मैं। देखिए, अब फिलोसोफर भारत में भी बहुत है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन बुद्धा को समझने वाले इंडियन फिलोसोफर में बहुत कमी है। हम बड़ी बड़ी बाहर के फॉरेन ऑथर्स की भी किताबें देखते हैं, they said that Australian philosopher, Japanese philosopher, they said that Buddha is the man of the Asia, लेकिन हमारे यहाँ के फिलोसोफर को नहीं समझता। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जी यही विडंबना है। जी, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।